Hello everyone. So without wasting any time, let's get to the topic marginal costing. This topic can be useful for BCom students, BBA students and the students who are preparing for other competitive exams related to commerce. Okay? So, whenever we talk about costing, there are broadly two methods of costing. First is your absorption costing, and second is your marginal costing. Absorption cost, in a very layman sort of language, absorption costing means in which we use both the cost, that is fixed cost and variable cost, and in marginal cost we use only the variable cost. Okay, marginal cost, that is why it is also known as variable costing. Okay, वेरी इजी. अब्जॉर्प्शन कॉस्ट में क्या होता है, हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को कंसिडर करते हैं. मार्जिनल कॉस्ट में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं. फॉर नाउ दिस इज इनफ. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट. अच्छा, सपोज दिस इज अ फैक्ट्री. ओके, दिस इज अ फैक्ट्री एंड आई एम प्रोड्यूसिंग दीज पेन्स. द पेन्स जैसे मैं लिख रही हूँ ना, सपोज आई एम प्रोड्यूसिंग दीज पेन्स. सो इस फैक्ट्री को मैंने रेंट पे लिया है एंड द रेंट इज say rupees 10,000 per month. Okay, so if I am producing just one pen in the factory, I'll have to pay the complete 10,000 rupees as a rent. ठीक है, अगर मैं एक पेन भी प्रोड्यूस करूँगी, I'll have to pay the 10,000 full amount. Okay, if I'm producing 1,000 pens in the same factory, again I'll have to pay the same rent, 10,000. If I'm producing 1 lakh pens in the same factory, again I'll have to pay the same rent, that is 10,000. So my rent is not dependent on the units that I'm producing. So my rent will be called as my fixed cost. Fixed cost का मतलब क्या होता है, which does not increase with the increase in the units. आप जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो उसके इंक्रीज होने की वजह से आपकी फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज नहीं होती, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ठीक है, अप टू अ सर्टेन लेवल it remains constant. Whereas your variable cost keeps on increasing with an increase in the units of production. Like एक पेन यूज़ करेंगे तो हमें लेबर कम चाहिए होगा, 1000 पेन्स प्रोड्यूस करेंगे, we need more labors, more raw materials. If we are producing 1 lakh pens, then we need more labors. So more labors means more wages, more pens means more raw materials. So basically that is my variable cost, which increases with the increase in the प्रोडक्शन. इतनी बात क्लियर है. सो आई कैन से दैट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट. ओके, दैट इज ईजी. टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट. अब सपोज इस पेन को प्रोड्यूस करने में मेरी टोटल कॉस्ट लगी है 10 रुपीज़. ओके, हाइपोथेटिकली इस पेन को प्रोड्यूस करने में मेरी टोटल कॉस्ट लगी है 10 रुपीज़. तो अगर मैंने इसको 10 रुपीज़ में प्रोड्यूस किया है, आई एम नॉट गोइंग टू सेल इट फॉर द सेम 10 रुपीज़. ठीक है, मैं अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करूँगी उसमें. तो मैंने पेन को प्रोड्यूस किया था 10 रुपीज़ में, दैट इज़ माई कॉस्ट, टोटल कॉस्ट. मैंने इसमें ऐड किया 5 रुपये का अपना प्रॉफिट एंड देन आई एम सेलिंग इट फॉर 15 रुपीज़. ओके, 10 रुपीज़ मेरी टोटल कॉस्ट लगी थी, 5 रुपीज़ का मैंने प्रॉफिट ऐड किया एंड देन आई एम सेलिंग इट फॉर 15 rupees. So I can say total cost plus profit is equal to sales. Okay, total cost plus profit is equal to sales. अब total cost को मैंने bifurcate किया था 2 parts में. What was that? Variable cost and fixed cost. So I can also write earlier what I wrote, total cost plus profit is equal to sales. अगर मैं total cost को bifurcate करूँ तो it can be variable cost plus fixed cost plus profit is equal to sales. Okay, I don't think यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी आप लोगों को. Variable cost plus fixed cost plus profit is equal to sales. If you are able to understand this, तो इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, now coming to the next main part. Okay, let's look at this. We have written sales. Now let's see. सेल्स में मैंने 3 कंपोनेंट्स लिए हैं. कौन कौन से कंपोनेंट्स? एक है मेरा सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट, एक है फिक्स्ड कॉस्ट और एक है प्रॉफिट. ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, सेल्स ली, सेल्स में से माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट. अच्छा, जब माइनस करते हैं ना तो यहाँ पे ब्रैकेट का साइन दे देते हैं. ठीक है, मतलब ब्रैकेट दे देते हैं माइनस के साइन में. ठीक है, अब सेल्स में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस की. नाउ लुक, सेल्स में 3 चीज़ें थी मेरे पास, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट. वेरिएबल कॉस्ट को मैंने माइनस कर दिया. व्हाट एम आई लेफ्ट विथ? फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट.
ओके। फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट बचा मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के लिए, जिसके लिए एक कलेक्टिव टर्म हम यूज़ करते हैं, क्या? कंट्रीब्यूशन। ये एक नया टर्म हो सकता है आप लोगों के लिए शायद, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को हम कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं। तो मैंने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया एंड आई गॉट कंट्रीब्यूशन। तो आई कैन ऑल्सो से कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और कंट्रीब्यूशन कैन ऑल्सो बी इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन आया। अब कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसमें से मैंने माइनस किया फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसमें से मैंने फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस कर दिया, देन व्हाट एम आई लेफ्ट विद? बस प्रॉफिट बचा मेरे पास। सेम इज रिटन है, फिक्स्ड कॉस्ट को भी माइनस कर दिया और मेरे पास क्या बचा? प्रॉफिट, ठीक है। आई रिपीट द होल थिंग अगेन। सेल्स में 3 चीज़ें थी मेरे पास, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ओके। सबसे पहले मैंने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, तो मेरे पास क्या बचा? फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट, जिसको हम साथ में बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन में से मैंने फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस कर दिया, तो आई एम लेफ्ट विथ प्रॉफिट। दिस इज द होल थिंग। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग। दिस वॉज द ओनली बेसिक, ओके। नाउ कमिंग टू द इंडिकेटर्स यूज इन मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग का पर्पस क्यों होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ते क्यों है? ताकि मैनेजमेंट डिसीजन ले सके। व्हाट सॉर्ट ऑफ डिसीजंस? कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट के बेसिस पे आपको प्रोडक्शन कितना करना है, कब प्रोडक्शन रोक देना है, कब शट डाउन कर देना है, या फिर अगर आपको एक स्पेसिफिक प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको कितनी सेल्स करनी चाहिए, डिसीजंस लाइक दैट, ओके। सो बेसिकली डिसीजंस लेने के लिए देयर आर 3 पैरामीटर्स या फिर 3 इंडिकेटर्स। फर्स्ट इंडिकेटर है आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, सेकंड इंडिकेटर है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, एंड द लास्ट इंडिकेटर इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ओके। We'll do this in the next part of the same chapter, okay. If you like my video, then please like it and share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.